हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 6 द वंडरफुल वर्ड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएम है, ठीक है, चैप्टर 6 है पोएम द वंडरफुल वर्ड्स। Very short answer type questions. Why does the poetess say that we should never let our thoughts shrivel and die? You could not find a way to say it. Why does the poetess say that our thoughts are imprisoned? ठीक है, imprisoned. The poetess compares our mind with a prison which hold our thoughts. Give two words from the poem that rhyme with head. तो क्या क्या होगा? head का rhyming fade and said. Pick out a word from the poem that rhymes with swing. Think. Name the poem and the poetess. पोएम का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स एंड पोएटेस मैरी ओ नील। ठीक है, विच वर्ड फ्रॉम द पोएम राइम्स विथ सरप्राइज आइज। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर थाउट्स एंड आइडियाज टू अदर्स? वी मस्ट पुट आवर थाउट्स एंड आइडियाज इनटू वर्ड्स। हाउ डज द पोएटेस इंट्रोड्यूस अस to the wonderful world of words? Why does she say that language is important? The poet says that the English is a wonderful language and that in order to express our thoughts, we must put them into words. Explain the lines so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. The poet calls this process of thoughts becoming action as handsomely groomed and fed, as he is comparing it to person who is well clothed and fed. What does the poetess mean by the line some fresh and beautiful things, something new and different? Long answer type questions. What is the importance of words in our day-to-day life? List down the ways in which words are useful to us. तो ये VVQ है, आपको खुद लिखना है कि वर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो ये आपको खुद ही लिखना है। What message does the poetess Mary O'Neill want to impart throughout the poem The Wonderful Words? ठीक है, द पोएम द वंडरफुल वर्ड्स बाय मैरी ओ'नील give us message about the importance of language in communicating with other people. Extract best questions. Directions. Read the following stanzas and answer the questions that follow. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. Question है कि why does the poetess call English is a wonderful game? Because you have to match the words. According to the poetess, what do we need to do? Articulate our thoughts and ideas clearly. Put them into words. Why does the poetess say that a lot of things are yet unsaid? Many of the loveliest things are yet unsaid. One should not let a thought die because of क्या होगा? C नंबर, lack of a way to say it.
टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ श्रीवेल, श्रीवेल का वेदर, ठीक है, डी नंबर, टिक लगाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेंजा है कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थाउट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी वंस longing today to hear some fresh and beautiful things, but only words can free a thought from its prison behind your eyes, maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Question है कि what does the poetess mean when she says that words are the food and dress of thoughts? Our thoughts can be expressed only thoughts words. How do words help in freeing a thought that's bound in our mind's prison? Put those thoughts into words and give them expression. What surprise does the poetess refer to in the lines mentioned above? A new thought. Which of the following words is the anonym of marvelous? क्या होगा? ऑर्डिनरी, टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन टू वॉन्ट समथिंग, तो लॉन्गिंग, टिक लगाएंगे। उसके बाद है इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आई इमेजिन दैट यू वेक अप वन डे एंड फाइंड दैट देयर इज़ नो लैंग्वेज टू कम्युनिकेट योर थाट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप उठते हैं और देखते हैं कि कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिससे कि हम एक दूसरे के थाट्स, मतलब अपने थाट्स को एक दूसरे से हम फीलिंग को बांट सके, बोल सके, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे। हाउ विल यू कम्युनिकेट विथ अदर ह्यूमन्स, तो आप दूसरे ह्यूमन्स को किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है, ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, यानी कि बिना लैंग्वेज के वर्ल्ड, यानी कि कोई भी भाषा नहीं है इस दुनिया में, कोई भी लैंग्वेज नहीं है, उसके बिना ये दुनिया कैसा होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ, तो ये आप खुद बनाएंगे। सेकंड है यू वॉक अप इन द मॉर्निंग येस्टरडे एंड फाउंड दैट यू कुड नेदर स्पीक नॉर हियर अ वर्ड। आप जो है ना येस्टरडे को उठते हैं, ठीक है, और ठीक है, आप येस्टरडे को उठे और उसके बाद उठने के बाद क्या होता है, स्पीक नॉट हियर अ वर्ड, आप कोई भी वर्ड नहीं सुने, ना ही आप बोलते हैं। यू आर लॉस्ट इन योर आउन वर्ल्ड, और आप अपनी दुनिया खो देते हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स डिस्क्राइबिंग योर अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एंड हाउ यू लर्न टू डील विद द सिचुएशन। तो ये आप जो है ना इस लाइन को आप डिस्क्राइब करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को, अपने सिचुएशन को आप ये कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में आप ये बताएंगे। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़िए, ये पोएम है, पोएम को अच्छे से याद कीजिए क्योंकि लाइन बाय लाइन आपको याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और वर्कबुक ज़रूर रिवीजन कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।